Honorable Vice Chancellor, sir, Dr. Amin Patel, sir, dynamic and visionary registrar, sir, respected dean, principals, respected teachers, and my dear friends. Farmers Day or National Farmers Day or Kisan Divas is celebrated every year on 23rd of the December nationwide, which creates to praise the farmers as they are the spine of India. The day also embarks on the birth anniversary of the Indian farmers leaders and the former Prime Minister of the India, Chaudhry Charan Singh. Chaudhry Charan Singh, the Kisan leader, was the fifth Prime Minister of the India who served the country for a very short period from July 28 to 1979 to January 14, 1918. Although he was a very simple-minded man, he introduced many policies to improve the Indian farmer's life. He followed the famous slogan Jai Jawan Jai Kisan, which was given for the farmers by Lal Bahadur Shastri, the second Prime Minister of India. He himself belonged to the farmer family and led an extremely simple life. The professional of the farming started around 12 years ago with a domestication of the livestock. So it is the one of the oldest job around. A farmer worked very hard day and night to provide the livestock in required amount. Hence, we should pay respect to their hard work and should encourage others also equally. Agriculture remains the central to India economy. The livelihood security of an incredible large number of the farm facility is linked to agriculture. 85% of the small and marginal farmers derive their livelihood from the sectors. The make farming more remunerative and to transform the farmers into the expansion and research innovation for the low cost technology, machines and tools are necessary. This is the time to stimulate active policies for the sustainable development of the agriculture system based on farmers facility and cooperatives. Programs such as the Bringing Green Revolution to Eastern Indian and National Food Security Mission have already provided the much needed boost to productivity of the major crops in the several states. I am sure the truth and increase the agriculture productivity will continue. Now, I welcome to all the farmers members, our Vice Chancellor sir and Dean sir. Now, I would like to call upon stage, Dean, our respected Dean sir, for share and welcome to farmers and Vice Chancellors. First of all, I think on this day, we should recall Chaudhry Charan Singh sir, the fifth Prime Minister of India. I would like to welcome Honorable Provost sir, our university, respected Registrar sir, our university. At the same time, I would like to welcome our farmers. केम छो? ये बहुत जरूरी है कि फार्मर्स का खुश होना और सुखी होना। चौधरी चरण सिंह ने बहुत सारा काम फार्मिंग के फील्ड में किया, खेती के काम में किया और बहुत सारा उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो खेती के लिए ही था। ये कहा जाता है कि अगर हमें किसी नेशन को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उसके फार्मर्स को मजबूत होना ही चाहिए। आज के समय में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, अगर उसको हमारे किसान अन्नदाता अडॉप्ट कर लें तो हम बहुत सारी चीजों को आगे ले जा सकते हैं। मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहूंगा। हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारा जो पारुल यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, उसमें एक हमारा स्टूडेंट है, वो ये फार्मिंग करता है वाटरमेलन की, तरबूज की, और आप सोच सकते हैं वो लगभग 250 टन तरबूज एक्सपोर्ट कर देता है, बाहर भेज देता है। हम कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज डेवलप करें जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़े। हमारा बहुत सारा जो प्रोड्यूस है वो खराब हो जाता है, या तो उसमें कुछ डिसीज लग जाती है या उसमें कीड़े लग जाते हैं। हम उसको बचा पाए तो बहुत सारा रिजर्व हमारा बच पाएगा। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर today's webinar chief guest, IAS Dr. Hira Lal. Dr. Hira Lal works in the different aspect, more or less in the field of the agriculture sciences.
Presently, he is being the part of the NHM, National Health Mission, UP. पर उनका बहुत सारा काम फार्मिंग को लेके है। बांदा जैसा जिला यूपी का, वहां उन्होंने इतना काम किया है फार्मिंग को लेके और वाटर कंजर्वेशन को लेके कि वहां के लोग उनको हमेशा याद रखते हैं। आज मैं उनका भी वेलकम करना चाहूंगा। सर नमस्कार, फॉर कमिंग into the webinar of Parul University College of Agriculture, Faculty of Agriculture. Namaskar, sir. So, thank you very much. I would like to all to join this event with a full heart. Thank you very much. Please. Hello. Now I would like to call upon Dr. Aman Patel, sir, our Vice Chancellor of our university, for sharing thoughts. So, namaskar to one and all. Really, it's a pride moment for me to be a part of a day which we are going to celebrate as a Farmer Day. As being the son of soil, I am a farmer's son and passed my most of the life in just farming. Still, I have some of the so-called that land where we are having the farming. We have a cattle and everything. So still, I am no doubt a Vice Chancellor over here, but still I am associated with the farming. And that's why when such days are celebrated, I definitely feel very proud of it. On today's occasion, we are lucky enough that we have a IAS officer, Mr. Hiralal, to be the guest of this function, chief guest of this function. Obviously, it's a proud moment for us that his support, or rather his contribution, whatever he's going to speak, will be much useful to us for much inspiration so that we can do better. As so far life of farmer is concerned, because I passed through that stage, why it is not improving? Even though government is making the measures, so many things, even today we are seeing that farmer agitations are going on. Some of the group of farmer are against of that bill and some are favoring. So we, being a farmer, I am unable to understand what is the correct thing. But one thing I can understand, that we became independence in 1947, and being a farmer country, we have given a lot of weightage to all farmers and the agriculture. Somehow we are more dependent to the season, more especially the monsoon type of raining, amount of raining, and sometimes we see that there is ativrushti, sometimes there is anavrushti, and farmers sometimes producing lot and getting wasted and so on. So ultimately the thing is happened after 70 years. Say even though there are 52% population is of farmer, they are busy with the farmer profession, our contribution to GDR is only 18%. That is something wrong in that. Why it is so, I cannot understand still today. I'm trying to hear that or trying to understand several whatever the presentation comes on the agriculture. But unfortunately, I'm not understanding why it is happening, why the contribution from farmers are not that much. And on the contrary, we have heard about that so many farmers are committing suicide. Means day by day, their situation is going to be worse and worse. So even though Sarkar, that government is giving some so-called whatever Deva Mafi for so many times, we have seen that 3 times, and giving the support in terms of monetary. But this is not a permanent solution. Sometimes the question comes that the khedut, that farmer, what he is getting, say suppose one potato, they are selling at ₹10 per kg, but in market we are purchasing by 50 rupees. So what happens to that 40 rupees in between? That is the thing or gap which we have to find out, and that credit or that amount should goes to the farmer. That type of mechanism, if government is having that, then and then we can say that we can save the farmers, or we can uplift the farmers, or we can uplift the life of farmers. As so far the research part is concerned, government of Gujarat is very, very positive. And even there is only one agriculture college, they have converted into 4 agriculture university, so that all these professor of agriculture university can go to the extension activity of farmers, and farmers can do better, more and more research can come out. Even though this much of effort that is put up by the government of Gujarat, I am talking about the government of Gujarat, where a lot of efforts are put. No doubt, as far as research is concerned, whenever there is a ranking of university, our Anand Agriculture University is in that rather good position. But that is not sufficient as so far the research only is concerned. The benefits of the farmers is also of more importance. What benefit we have given to the farmers, or what help. One of the area where I can understand
that foods are there, and it is said by our principal that some of the food get wasted, means food processing and food preservation is also one of the issue where we have to address, so that we can give something to our farmers. No doubt today we have got so many farmers. I'm just seeing from that slide that you are assembled in one of the hall, where my best wishes to all of you, because the farmers are those who can change the life of the entire country, and you can understand the real things. Obviously, we can do something for the country. So today, whatever we have arranged by our agriculture college may helpful to not only to our student, but also as being it is a farmer day, we can also having some deliberation. Their suggestion can also help us how to improve ourselves, so that we can give the better agriculture education to our students, and ultimately that credit or benefit goes to the society at large. So my best wishes to entire this team of agriculture college, along with our guest who has joined today to address us, and my dear farmers, those who have also assembled here to understand in this workshop. So again, my best wishes, and I hope so that we can do for the entire day some good deliberation will help us society as large. Thank you very much. Over to Arpan. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for giving your valuable time and great thoughts. Now, I would like to invite Dr. Hiralal sir for start his presentation. Sir, please start. Thank you. मुझे आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी बात करने का, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं, बीसी साहब आपका भी, और मुझे आप लोगों से पहली बार इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद शर्मा जी का दूंगा कि शर्मा जी से मेरी बात होती रहती है और वो हम लोग इस तरह से बात करते रहते हैं, और वो मेरे इस मॉडल को उन्हें के समझ में आया। और अभी मैंने कल एक यूनिवर्सिटी है एमपीटी, मैंने वहां पे इसके बारे में बात किया था। तो आज जो है पारुल यूनिवर्सिटी में और इस तरह से कई इंस्टीट्यूशन में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपने जो किसान प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और ये बड़ा संजोग अच्छा है और ये मुलाकात अच्छी है कि हम लोग एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर के एक शुभ अवसर डे पे ये बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया रहता कहाँ है? कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, इंडिया लिव्स इन विलेजेस। और यही कारण है कि अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जब भी कोई बात कही तो वो हमेशा गांव की बात करते थे, गांव में स्वराज की बात करते थे, गांव पर ही उनका फोकस था। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आजादी के बाद से गांव का विकास हुआ है। हरित क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति, बहुत सारी क्रांति भी आई है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जिसकी वजह से अभी भी गांव में लाचारी है, बेरोजगारी है और गरीबी है। गांव में जो गरीबी है, लाचारी है और बेरोजगारी है, ये तीनों चीजों को, लाचारी, बेरोजगारी और गरीबी, इन तीनों चीजों को हम लोगों को दूर करना चाहिए। और जब तक ये तीनों चीजें दूर नहीं होंगी, गांव संपन्न नहीं होगा, और गांव संपन्न नहीं होगा तो देश संपन्न नहीं हो सकता। ये सभी का मानना है और यही सत्य भी है। तो अब ये बात होती है कि गांव को कैसे संपन्न बनाया जाए, गांव को कैसे मॉडल गांव बनाया जाए, और अभी तक जो प्रयास हुए वो सफल क्यों नहीं रहे। तो मैं एक चीज बताऊं, हम लोगों की जो आदत है गवर्नेंस की, कि हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें खूब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बना करके उसमें बड़ी बड़ी उसका जो धनराशि है, जो अमाउंट है, वो बड़ा बड़ा बजट की बात करते हैं। ये सब चीजें जितना उसका आउटपुट आना चाहिए था, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आया नहीं। इसका सरलीकरण होना चाहिए, ये सिंपल होना चाहिए, और जिससे कि आम आदमी के समझ में आए। तो मैं आपको बताऊं, अभी मैं 1.5 साल तक बांदा, एक बुंदेलखंड का जिला है, वहां 1.5 साल तक कलेक्टर था, डीसी था। मेरा गुजरात से भी लगाव है, गुजरात से भी मेरा आना जाना होता है, और मैं गुजरात के काफी लोगों को जानता हूं, और गुजरात के जो काफी लोग हैं वो मुझे भी जानते हैं। तो जो बांदा में हम लोगों ने काम किया एज ए कलेक्टर, जो काम हुआ वहां 1.5 साल में, उसको जब हम लोग वहां एक जाई किए, 1.5 साल में काम करते रहे, जब उसको एक
एकजाई किया, तो उसका जो रिजल्ट आया वो एक मॉडल गांव का रिजल्ट आया। और हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, मतलब कोई एक्स्ट्रा इनपुट नहीं लिया इन द फॉर्म ऑफ बजट, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। जितना रिसोर्सेज अवेलेबल थे डिस्ट्रिक्ट में, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विथ पब्लिक पार्टिसिपेशन, विथ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, रिजल्ट आया। जैसे कि पानी की बहुत बड़ी समस्या थी बांदा में, हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन का मुहिम चलाया, तो वाटर 1 मीटर 35 सेंटीमीटर बढ़ा, और जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ा। तो हम लोग जो ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट लाए हैं, जिसको कि बांदा में हम लोगों ने किया, बांदा में ये काम हुआ वो अनऑर्गेनाइज्ड था। अब इसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लागू कर रहे हैं, और ये अगर लागू हो गया तो ये कोई ऐसा तो है नहीं, ये पास प्रयोग है, मतलब इट इज ये टेस्टेड एंड ट्राइड फार्मूला है इन बांदा। बांदा पिछड़ा जिला है, बांदा में हर तरह की स्केर्सिटी है। जब ये वहां पास हो सकता है, ये प्रयोग वहां फ्रूटफुल रिजल्ट ला सकता है, तो व्हाई नॉट इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स। और गुजरात तो बहुत ही मतलब कमर्शियल स्टेट कहा जाए गुजरात को, तो मैं, और पार्टिकुलरली कमर्शियल स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, और ट्रेड के लिए तो मैं नहीं जानता बहुत, लेकिन कमर्शियल के लिए एग्रीकल्चर में गुजरात का अच्छा काम हुआ है और है। तो अगर एग्रीकल्चर ट्रेडिंग का रोल में गुजरात, चूंकि उसका अनुभव है ट्रेडिंग का, इनका पूरे विश्व में नेटवर्क है, तो अगर एग्रीकल्चर ट्रेडिंग की भूमिका गुजरात उठाए तो पूरे देश का कायाकल्प हो सकता है थ्रू मॉडल विलेज गांव डेवलपमेंट। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा अपने ये जो मेरी पीपीटी है इसके माध्यम से बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है सर? नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं नो सर, नो सर, प्लीज शेयर दिस स्लाइड्स। नहीं, क्यों नहीं आया? ये अलाउ करना पड़ेगा क्या आपके यहाँ से? अब आया? नहीं सब शेयर पे आप करो ना क्लिक, शेयर प्रेजेंटेशन ऐसा होगा आपका लैपटॉप पे। एक मिनट सर, कॉर्नर पे प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन होगा, फ्रॉम देयर यू कैन शेयर। उसको, हाँ, ये प्रेजेंट नाउ, वो प्रेजेंट नाउ पे करेंगे तो आ जाएगा। शेयर करो। नहीं आ रहा वहां? नहीं सर, अभी नहीं आया। अब आया? तो शर्मा जी आ गया? हाँ सर, अब आ गया। ओके, थैंक यू। तो चला गया। ओके, ये आ गया ना? हेलो शर्मा जी, देखिए। हाँ, अब दिखते हैं। हाँ, प्रोसीड। हाँ सर, आ गया तो देखिए, हाँ देखिए, भारत सरकार दो बातों पे चर्चा कर रही है। किसानों की आय दोगुना कैसे किया जाए और गांव को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। तो इसी पर ये जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट हम लोग लाए हैं, ये बड़ा सिंपल है। तो अगर मॉडल गांव में सफलता बनाने में मिलती है तो किसानों की आय दोगुना हो सकता है और गांव आत्मनिर्भर हो सकता है। देखिए, हमारा इसका विजन है गांव का चौमुखी विकास। ये विजन है मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट का। मिशन है विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से गांव में विकास का एजेंडा स्थापित करना। मतलब एक विलेज मैनिफेस्टो, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। विलेज मैनिफेस्टो के सहारे गांव में विकास का चर्चा कराएंगे, विकास को मुद्दा बनाएंगे और गांव के ही अच्छे लोगों को चेंज मेकर के रूप में तैयार करेंगे और ऑल राउंड
विकास करेंगे मॉडल गांव। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज विलेज मैनिफेस्टो, सेकेंड पार्ट इज द चेंज मेकर सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट, और थर्ड पार्ट है ये पीओ या पीसी, जो कि आजकल सभी लोग जानते हैं, काफी चर्चा में है। हर गांव में, मतलब जो विलेज मैनिफेस्टो है, हर गांव वाले को विलेज मैनिफेस्टो से जोड़ना है। और दूसरा है हमारा जो है कि हर गांव में चेंज मेकर बनाना है, हर गांव में ये पीओ बनाना है। ये 3 पार्ट हैं इसके, और इसको हम लोग कैसे करेंगे मैं आगे इसको डिटेल कर रहा हूं। देखिए भाग 1 है हमारा, ये कहना है खेती सबसे बड़ा उद्योग है। अभी तक हम खेती को उद्योग मानते ही नहीं है। खेती सबसे बड़ा उद्योग है और किसान सबसे बड़ा उद्यमी, सबसे अच्छा उद्यमी है। विलेज मैनिफेस्टो क्या है? विलेज मैनिफेस्टो गांव विकास के एजेंडा को स्थापित करने का एक माध्यम है। इससे गांव वालों को अपने विकास के अधिकार की जानकारी होगी और गांव कल्याण के लिए आम सहमति बनाने में मदद मिलेगा। विलेज मैनिफेस्टो की आवश्यकता क्यों है? जिससे गांव और गांव के लोग धनी हो जाएं, सभी का अपना रोजगार हो, गांव परिवार छोड़ के नौकरी या रोजगार के चक्कर में लोग दूसरे प्रदेश देश में जाते हैं, वो ना जाना पड़े। मॉडल गांव बनेगा तो पूरे देश में उसका नाम इज्जत होगा और सभी के जीवन में खुशहाली हरियाली आएगी, सभी लोग मजबूत होंगे। देखिए विलेज जो मैनिफेस्टो है, जब हमने इस पर बात की कि विलेज मैनिफेस्टो, तो लोग तुरंत इसको इलेक्शन से जोड़ दिए। देखिए मैनिफेस्टो का मतलब इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है, ये विलेज मैनिफेस्टो है। ये 1000 तरह के मैनिफेस्टो हैं, उसमें एक इलेक्शन भी मैनिफेस्टो है। ये चार्टर ऑफ विलेज डेवलपमेंट है विलेज मैनिफेस्टो। क्या होना चाहिए इसमें? सफाई की चर्चा होनी चाहिए, पढ़ाई की चर्चा होनी चाहिए, दवाई की चर्चा होनी चाहिए। दवाई मतलब एक केमिकल दवाई नहीं, योगा जो है जिसमें दवाई खाने की नौबत नहीं। कमाई, कैसे इनकम बढ़े। बिजली, अब बिजली का मतलब वो तार वाला बिजली नहीं, सोलराइज बिजली। पानी पीने का, सिंचाई का, पानी के बचाव कैसे किया जाए। हर गांव वाले को उसकी कैपेसिटी के अनुसार रोजगार कैसे मिले। विपणन मीन्स मार्केटिंग, कैसे उसकी बिक्री हो। गांव का संवाद तंत्र होना चाहिए, आपस में बात करें, देश विदेश में बात करें। आजकल जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही, जैविक उत्पाद हो, आत्मनिर्भर गांव को कैसे बनाया जाए, गांव में कोई विवाद झगड़ा ना हो, गांव का जो नियम है, लेखा है, उसका रख रखाव हो, ट्रांसपेरेंट हो, गांव का बायोडाटा हो, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो। ये पीओ बना करके एक कंपनी गांव में खड़ा किया जाए। और गांव के जो लोग बाहर रहते हैं, इसका नाम दिया है हम लोगों ने एनआरवी, नॉन रेजिडेंट विलेजर। जो गांव के लोग नौकरी करने देश विदेश में कहीं भी गए हैं, अगर वो जिले के बाहर हैं तो उनको संपर्क किया जाए, उनकी मदद लिया जाए। माइल न्यूट्रिशन, वृक्षारोपण की बहुत बड़ी समस्या है गांव में, हरियाली दिखती नहीं। और जो हमारे लोकल कल्चर हैं, गेम हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाए, हम लोग भूलते जा रहे हैं। फीमेल डेवलपमेंट, गांव में गाने की, बजाने की, किसानी की, खेती की, पढ़ाई की बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उनको प्रमोट करना। गांव की जो समस्याएं हैं उसको मिल करके गांव को समस्या रहित बनाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के कार्यक्रमों को गांव में लाना। और एक दिन गांव में स्थापना दिवस मनाया जाए, जिसमें सभी लोग, जो बच्चे बच्चियां की शादी हो गई है वो परिवार सहित आए, देश विदेश के लोग आए, स्थापना दिवस मनाया जाए। तो ये 25 पॉइंट है विलेज मैनिफेस्टो। अगर इस विलेज मैनिफेस्टो को हम लोग गांव के हर आदमी तक पहुंचा दे, तो अभी जो आदमी गांव में बैठ के बिला वजह की बातें करता है, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, तो इससे क्या होगा, गांव में बात करने के लिए भी कुछ मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, तो लोग बिला वजह अपना टाइम किल करता है। तो ये देखिए विलेज मैनिफेस्टो का हम लोगों ने एक हैंडबिल बनाया। पहले तो 2 महीना ये चलाया, फिर इसके बाद इंप्रूव करके ये घोषणा पत्र, विलेज घोषणा पत्र है। इसमें ये 25 मुद्दे हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है। अगर गांव के जो अच्छे लोग हैं, ये अपना फोटो लगाएं, अपना नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, और इसको 1 रुपया लगता है कलर छपवाने में, और छपवा करके गांव में बंटवाएं और इस पर चर्चा करें, इन 25 पॉइंट पे। दिस इज द विलेज मैनिफेस्टो। जब गांव के हर व्यक्ति को इस 25 मुद्दे की जानकारी हो जाएगी और इस पर चर्चा होने लगेगी, तो एक विकास का सोच बनेगा
और जब सोच बनेगा, दिल दिमाग में सब ये आइडिया 25 पॉइंट पे घुस जाएंगे, तो वहां जो टाइम किलिंग हो रही है वो विकास के बारे में सोचेंगे, और विकास के बारे में जब सोचेंगे तो विकास के रास्ते को ढूंढेंगे, विकास के रास्ते पे चलेंगे और गांव का विकास होगा। ये है विलेज मैनिफेस्टो पार्ट फर्स्ट, और ये बड़ा सस्ता नुस्खा है, 2000 रुपया खर्च करना। हमारा ये भी कहना है, ये जो विलेज मैनिफेस्टो है, अगर आप इस पर काम करते हैं, और अगर मान लीजिए आपके यहाँ पंचायत चुनाव होता है सरपंच का, कहीं कहीं सरपंच कहते हैं गांव के मुखिया को, और कहीं कहीं प्रधान कहते हैं, जैसे यूपी में प्रधान कहते हैं, एमपी में सरपंच कहते हैं, आपके गुजरात में शायद सरपंच ही कहते हैं, जो मुझे ध्यान आ रहा है। अगर वो अगला चुनाव होगा और वो पूरे सोशल लीडर गांव का बन गया, और गांव वाले कहते हैं साहब आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, चुनाव लड़ो, अगर वो चुनाव लड़ जाता है इस घोषणा पत्र पे काम करने पे, तो वो उस गांव का क्या हो जाएगा। मैं समझाने के लिए ऐसे कहता हूं, देश में जो रोल, जो हमारे संविधान का दर्शन है, जो हमारा संविधान चाहता है, देश में पीएम, प्रदेश में सीएम और गांव में प्रधान, इनकी भूमिका एक जैसे है। तो अगर मान लीजिए आप चुनाव लड़ गए तो आप उस देश के पीएम हो गए, अगर चुनाव हार गए तो आप उस देश के लीडर, आप अपोजिशन हो गए, और अगर आपने चुनाव नहीं लड़ा, आप केवल इस पर काम करते रहे, तो आप उस गांव के अन्ना हजारे साहब हो गए। रालेगांव सिद्धि में अन्ना हजारे साहब ने क्या किया, यही तो किया। रिटायरमेंट के बाद आए मिलिट्री से और विलेज मैनिफेस्टो पे काम किया, इसी 25-30 पॉइंट पे काम करके अपने गांव को मॉडल बना दिया। उनका क्या रिस्पेक्ट है आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें आप उस गांव के पीएम बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, उस गांव के लीडर आप अपोजिशन बन सकते हैं, उस गांव के अन्ना हजारे साहब बन सकते हैं। ये इसकी खूबसूरती है, घाटे का सौदा नहीं है। अब बात है इसका पार्ट 2 कि ये काम करेगा कौन, कैसे होगा। अगर हम लोग इसका बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लिख ले, 5 किलो का बढ़िया बाइंडिंग करा ले, अच्छी हिंदी लिख ले, फोटो लगा दे, तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये सब काम हमने बांदा में किया था, तो ये हमने उसी को कलेक्ट किया है और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। ये चेंज मेकर वह व्यक्ति है जो किसी सामाजिक समस्या का समाधान एक रचनात्मक तरीके से करे। मतलब कि कोई व्यक्ति जो पॉजिटिव है और इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से किसी समस्या को बड़े आसानी से हल निकाल देता है, और जोश के साथ सामाजिक कल्याण के कार्य में करके एक बदलाव का रचना करता है। मतलब क्या है, इसको शुद्ध भाषा में, हर गांव में, हर जगह, हर मोहल्ले में अच्छे लोग होते हैं। वो निस्वार्थ भाव से सोचते हैं मेरा कुछ हो या ना हो, लेकिन सबका कल्याण हो। हम गांव में ऐसे लोगों को छांटेंगे। अभी कैसे छांटेंगे, हमने इसका प्रोफार्मा बनाया। हर गांव में 25, 50, 100 लोग अपना सब कुछ बेच करके गांव के कल्याण में लगाने को तैयार है, लेकिन उन्हें पता नहीं है, उनको कोई सहारा नहीं है, उनको कोई आइडिया नहीं है कैसे किया जाए। चेंज मेकर बनाना जरूरी क्यों है? आप अपने गांव के विकास का एजेंडा स्थापित करने में प्रभावशाली है। जो अभी हमने पहले बताया, वही ऐसे ही लोग छपवा करके फोटो लगा के ये काम कर सकते हैं, स्वार्थी आदमी नहीं कर सकता। और हर गांव, हर घर में, हर मोहल्ले में ऐसे लोग हैं। आपके आइडिया और सुझाव से गांव के विकास के कार्यक्रमों जो आप बताएंगे, समझाएंगे, उसी से गांव का विकास होगा, उसको बल मिलेगा। और पूरे गांव में एक चेंज मेकर के रूप में आप अपने गांव को एक मॉडल बनाने में उसका नेतृत्व करेंगे। जो चेंज मेकर होगा, आप उसके जो है लीडर होंगे। आपके गांव के लोग आपकी समस्याओं के लिए आपसे मिलेंगे, कहेंगे साहब ये समस्या है, ये कैसे होगा, तो आप वहां उसको समाधान देंगे, क्योंकि आप चेंज मेकर की भूमिका में रहेंगे। आपको एक प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ता का सम्मान भी मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे कि अभी मैं कह रहा था कि रालेगांव सिद्धि में ऐसे बहुत सारे देश में गांव हैं जहां वो फेमस हैं और उनकी बहुत बड़ी इज्जत है। देखिए, चेंज मेकर के पहचान का हम लोगों ने ये कुछ एक फॉर्मेट बनाया है। चलो गांव ये नारा दिया है। जैसे कहते थे दिल्ली चलो, वैसे हम लोगों ने कहा है गांव चलो, चलो गांव। कि उसके वो कितना पढ़ा है, उसका क्या क्या मतलब उसको नॉलेज है, एक जो जरूरत होती है, इसको बहुत सोच समझ के मार्किंग की है। इस पर हम लोग सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, वो जो व्यक्ति होगा जो इस पर सहमत होगा, काम करने को तैयार होगा, उसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे। अब अभी तक हमने चेंज मेकर की पहचान की, सिलेक्शन किया, अब हम उसको चेंज मेकर में बदलेंगे एक्चुअल रियलिटी में। अभी तो केवल वो चेंज मेकर इन सिलेक्शन है, उसकी ट्रेनिंग करेंगे। जैसे हम लोग आईएएस
और पीसीएस या सर्विस में जब आते हैं तो पहले टेस्ट देते हैं, सिलेक्शन होता है, उसके बाद हमारी आईएएस में 2 साल की ट्रेनिंग होती है। लाइकवाइज हम लोगों ने एक ट्रेनिंग का प्लान बना रखा है। पहले क्या करेंगे कि उस गांव के चेंज मेकर को यूपी में, मान लीजिए यूपी की बात कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, उस गांव यूपी के जो पद्मश्री हैं या जो मॉडल गांव है उनको हम लोग वहां भेजेंगे और वहां उनको दिखाएंगे एजुकेशन विथ रिक्रिएशन। कैसे? गांव के 10-15 लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनको पहले से जहां जाना है, जो स्पॉट है, जैसे यहाँ रामशरण वर्मा जी एक हैं, कक्षा 8 फेल हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, बनाना मैन, टमाटो मैन और टमाटर मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो आईआईएम लखनऊ में पढ़ाने जाते हैं। तो हम उनके यहाँ में उदाहरण के रूप में हम लोग उनके बारे में पहले कागज भेज के पढ़ाएंगे, उसके बाद उनके यहाँ ये लोग अपनी सुविधा से, अपनी गाड़ी से, कंट्रीब्यूशन से आएंगे, सीखेंगे और इसके बाद हम उनका एक टेस्ट लेंगे। तो जब वो वहां आएंगे, देखेंगे, उनकी आंखें खुलेंगी, उनकी समझ पैदा होगी। इसी तरह से फिर उनको 2-3 महीना काम करेंगे कि स्टेट के बाहर हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश में भेजेंगे और तीसरा विजिट फिर उन लोग काम करेंगे और तीसरी विजिट हम लोग उनको विदेश में कराएंगे। ये तीनों जो विजिट है ये ट्रेनिंग का पार्ट है, एजुकेशन विथ रिक्रिएशन। जाओ, मौज मस्ती भी करो, घूमो टहलो भी, और इसमें जो खर्चा आएगा वो कंट्रीब्यूटरी होगा। जो लोग इसको करेंगे, सीखेंगे, जाएंगे, वो पैसे को कंट्रीब्यूट करके कंट्रीब्यूटरी होगा। पैसे की कमी दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको पता ही नहीं है क्या करना, कैसे करना, कहाँ जाना। तो जो ये नेटवर्किंग है, जो कनेक्ट करने की समस्या है, हमारा ये जो प्रोग्राम है मॉडल गांव, उसमें वो सहयोग करेगा। तो ये है चेंज मेकर। अब इसका तीसरा पार्ट है एफपीओ। आप देखिए एफपीओ को लेकर के, एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इसको लेकर के भारत सरकार बहुत और स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत जोश के साथ काम कर रही है। किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह है जो वास्तव में कृषि उत्पादन कार्यों में लगा हो और कृषि व्यवसायिक गतिविधि चलाने के एक जैसी धारणा रखते हो। एक गांव या फिर कई गांव के किसान मिलकर भी यह समूह बना सकते हैं। यह समूह बनकर एक किसान उत्पादक कंपनी के तौर पर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। ये मतलब एफपीओ क्या है उसके बारे में हम लोगों ने बताया। हम अपनी भाषा में क्या समझाते हैं, एफपीओ एक मशीन है। वो क्या करेगा, गांव के एग्री को एक तरफ डालेंगे तो दूसरी तरफ एग्री बिजनेस निकलेगा। अगर आदमी को एक तरफ से कृषि वाला आदमी डालेंगे एफपीओ में तो दूसरी तरफ से कृषि व्यापार के बुद्धि वाला आदमी निकलेगा। लोगों की सोच को कृषि से कृषि व्यापार की सोच में बदलने वाली व्यवस्था कंपनी ही एफपीओ है। ये समझने के लिए हम लोग बड़े सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं। देखिए ये जो है, ये जो मैंने फोटो लगाई, ये मैं बांदा में कलेक्टर था, तो ये कुआं तालाब को जिलाने के लिए सुबह 6 बजे का ये कुएं के किनारे बैठ के मैं बैठक कर रहा था। ये टोपी हम लोगों का सिंबल था। ये देखिए पीछे ये बैनर है, कुआं तालाब में पानी लाएंगे, बांदा को खुशहाल बनाएंगे। तो ये सब कोई नया काम मैं करने नहीं जा रहा हूँ। ये प्रयोग हम लोग कर चुके हैं और ये सफल प्रयोग है। इसको ऑर्गेनाइज करके पूरे देश में करेंगे। ये पीओ से धनी कैसे बनाए, इसका लाभ कैसे हो, ये इसके बारे में बताया गया है कि आप हर किसान जा रहा है 100 रुपया का एक बैग कुछ खरीद के ला रहा है, और जब आप इकट्ठा खरीदेंगे तो वही 75 रुपया मिल जाएगा। जब वही आप अकेले बेचेंगे तो दाम कम मिलेगा और कलेक्टिव बेचेंगे तो दाम ज्यादा मिलेगा। जो एफपीओ के फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, उसका लाभ हम लोग इसके माध्यम से देना चाहते हैं। अब मैं इसके लागू करने की प्रक्रिया में बहुत सारी बातें नहीं, मेन मोटो ये था कि हमारे पास 3 पार्ट है। पार्ट 1 इज विलेज मैनिफेस्टो, पार्ट 2 इज द चेंज मेकर सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड पार्ट 3 इज द फॉर्मेशन ऑफ एफपीओ। एफपीओ कुछ नहीं है। टाटा, बिरला, अडानी, रिलायंस, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनकी इज्जत क्यों है? इनकी इज्जत इसलिए है क्योंकि इनके पास कंपनी है। तो सरकार ने कहा कंपनी से ही इज्जत है, कंपनी से ही पैसा मिलता है, कंपनी ही पैसा कमाती है। तो हम हर गांव में एक कंपनी बनाएंगे और कंपनी अधिनियम में, एक्ट में चेंज करके, और ये काम किया गया। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक रिवॉल्यूशन का मॉडल
हम लोगों के सामने आया है। पहले क्या था, अब जैसे ये एफपीओ मान लीजिए ये गाड़ी है ये, तो इसको चलाएगा कौन? चेंज मेकर चलाएगा। और चेंज मेकर कैसे चलाएगा, ये बात बेलन मैनिफेस्टो बताता है। देखिए कैसे मैंने इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश। ये जो ये पीसी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इसको मान लीजिए ये कि 25 करोड़ की एक चमचमाती हुई गाड़ी है, इस तरह समझिए आप। अब इसको गाड़ी को चलाएगा कौन? ड्राइवर कौन होगा? क्लीनर कौन होगा? इसका मैकेनिक कौन होगा? वो चेंज मेकर होगा गांव को। अब चेंज मेकर गाड़ी की रख रखाव कैसे करेगा, चलाएगा कैसे, क्या करेगा, ये उस चेंज मेकर को कौन बताएगा? वो विलेज मैनिफेस्टो से बताया। तो ये तीनों पार्ट आपस में कनेक्टेड हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये तीनों को जब हम एक साथ लागू करते, आप हैरत करोगे कि मैंने बांदा से प्रधान 20 प्रधानों की टोली अन्ना हजारे, बाबा अन्ना हजारे जी के गांव रालेगांव सिद्धि भेजा। और वही गांव के बगल में 20 किलोमीटर पे एक गांव है जहां के पोपट राव साहब हैं, उनको भी पद्मश्री मिला, वहां भी गए। तो ये जो सब हम काम कर रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने ये प्रयोग कर रखा है, उसी का ऑर्गेनाइज फार्म है ये सब हमारा लागू करने के तरीके हैं, मैं इसके डिटेल में नहीं बात करूंगा। ये हम लोगों का एक वो है, जैसे इसमें हमारे मार्गदर्शक हैं 5 पद्मश्री जो खेती में पद्मश्री पाए हुए हैं, कई बीसीज हैं, कई बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हम लोग मिल करके ये पर्सनल लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जैसे आईसीसीआई फाउंडेशन है, उसने इसकी पूरी मैन पावर की फंडिंग कर दी। टेक्निकल हमारे पास नॉलेज पार्टनर हमारी यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, हम आपके यूनिवर्सिटी को भी नॉलेज पार्टनर बनाने को सोच रहे हैं। इस तरह से हमारे जो मीडिया पार्टनर हैं, गांव कनेक्शन एक है, लोक पंचायत है, इस तरह से अभी हम लोग इसकी पूरी फॉर्मेशन कर रहे हैं और 1 तारीख को हम लोग इसको लॉन्च करने की सोच रहे हैं। ये हमारा मॉडल गांव का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये मॉडल गांव का साइट है, ये उसका नंबर है और ये उसका ईमेल है। अभी दिस इज ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन और ये जो है 1 तारीख से लॉन्चिंग का हम लोगों ने सोचा है। थैंक यू। ये थैंक यू में ये बांदा का ही है। ये हम लोगों ने बच्चियों के साथ साइकिलिंग की थी, एक जो है माइल न्यूट्रिशन पे यात्रा निकाला था, ये उसका फोटो है। दिस इज मी, ये मैं हूँ, ये मेरे अधिकारी गण है दोनों, ये सब बच्चियां हैं। तो देखिए मेरा ये कहना है इसके माध्यम से कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है, ये आजमाया हुआ फार्मूला है और इसमें कहीं कुछ, इसमें कक्षा 5 आदमी पास, जिसके पास कोई अकल नहीं है या गांव का बहुत बड़ा सिंपल आदमी कहते हैं इसके पास गांव में अकल नहीं, ये क्या कर लेगा, हम लोगों का फार्मूला उसके लिए भी ये लागू है और ये टेस्टेड ट्राइड फार्मूला है। अगर जैसे ट्रेडिंग में, व्यापार में गुजरात इज बेटर प्लेस्ड एज कंपेयर टू यूपी, तो जो इसके व्यापार वाला पोर्शन है पार्ट 3, अगर उसकी भूमिका गुजरात के लोग उठा लें और यहाँ से जो पहला भूमिका है पार्ट 1 और पार्ट 2 पैदा करना और सब बातें करना, तो हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और हमारा आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा बनेगा और पूरे देश में इसकी ख्याति बनेगी और ये एक बहुत अच्छा मॉडल देश के सामने आएगा। और जब तक गांव संपन्न नहीं होगा हम संपन्न नहीं हो सकते, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बहुत सिंपल आइडिया, बहुत सीधा आइडिया ये है और इसको हम लोग लागू करेंगे, मानेंगे नहीं ये भी सोच रखा है। कोई अगर कहे मान जाओ, नहीं मानेंगे। मैं खुद किसान का बेटा हूं, मेरे घर पे खेती होती है आज भी, मैंने बचपने में खेती को किया है, देखा है, सुना है। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं पटेल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और पटेल में, यूपी में पटेल की जो बेसिक सोशल वर्क है वो ये खेती है। यहाँ का जो पटेल समुदाय है यूपी का, बहुत बड़ी संख्या है, वो उसका मुख्य काम खेती है। मैं चूंकि उसी से मेरा बचपना खेती में रहा, मेरा अभी भी मेरे घर पे खेती होती है, तो मैं ये सब चीजें जानता हूं और मैंने उसको जिया है, देखा है, सुना है, इसलिए एक दर्द भी है। तो अगर चांस मिला है तो इसको करेंगे और करना है। तो धन्यवाद आप लोगों को। अब ये हम लोगों की शुरुआत है और हम लोग लगातार इस मुद्दे पे काम करेंगे, हम आपके यहाँ आएंगे और आपको बुलाएंगे भी। धन्यवाद शर्मा जी। शर्मा जी
शर्मा जी। Yes, sir. Thank you very much. Okay, now you continue. Yeah. So, I am very much If any, thankful to if any Honorable Provost sir, question, the Vice Chancellor of Parul University. I am very much thankful to IAS Dr. Hira Lal, who has spared the time for us for igniting the young minds, those who are pursuing the career in the agriculture sciences. At the same time, he has ignited the minds of the farmers. आज आपकी बातें सुनकर जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो मुझे लगता है कि 100% एग्री होंगे जो आपने कहा कि हम गांव को विकास के पथ पर कैसे अग्रसर कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि किसान का आगे बढ़ना, हाउ वी कैन इंप्लीमेंट द एफपीओ, और जैसा आपने बताया कि मॉडल विलेज का कंसेप्ट कितना आगे जाएगा और आपकी प्लानिंग क्या है। सर, हम बहुत ही थैंकफुल हैं कि आपने आज का बहुत अच्छा डेवलपमेंट शेयर किया, दैट द पारुल यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बिकम द नॉलेज पार्टनर with your movement. We are very much thankful for that. हाँ शर्मा जी, एक मिनट और लूंगा। देखिए, मैं आपके स्टूडेंट के लिए मैं स्लिप कर गया। देखिए, जब हमारा just a 1 minute, just a 1 minute. हाँ। Yes sir, yes sir. जब स्टूडेंट, जैसे हम भी स्टूडेंट हैं, जब हम लोग पढ़ाई करके बीटेक, एमटेक, पीएचडी करके निकलते हैं तो हमारे हाथ में केवल कागज का एक डिग्री होता है, और बेरोजगारी जब हम निकलते हैं तो बेरोजगारी का सहारा, मतलब बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे स्टूडेंट और आपके जितने भी एग्रीकल्चर या किसी तरह का स्टूडेंट हो, जब वो पढ़ाई कर रहा है, साथ में हमारे साथ जुड़ के अपने गांव में एक एफपीओ तैयार कर ले इस मॉडल को, जब वो 4 साल पढ़ेगा तो उसके दोनों हाथ में लड्डू होगा, एक हाथ में डिग्री का लड्डू और दूसरे हाथ में एक कंपनी का लड्डू, रोजगार का लड्डू। तो मैं आपके सारे स्टूडेंट को ये ऑफर देता हूं कि आपके माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े। हम एक हाथ में तो लड्डू आप रखेंगे डिग्री वाला, दूसरे हाथ में लड्डू हम रखेंगे रोजगार वाला, कंपनी वाला। धन्यवाद। Thank you very much sir for offering such kind of the good thing for our students. I think now the students are very much lucky. Whenever they will complete their degrees, they will be having the something in their hand beside the degree. और ये शायद बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि इस नॉलेज को वो कैसे ले पाते हैं और अपने आप को कैसे आगे बढ़ा पाते हैं। मैं आज के प्रोग्राम के लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ मेरी टीम का, सारे टीम मेंबर्स का, दोज हु हैव डिवोटेड देयर टाइम फॉर मेकिंग द सक्सेसफुल इवेंट। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द मैनेजमेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर, so he has given the consent for that, respected Star sir, for giving the guidance, and all team members. more specifically हमारे किसान भाई जिन्होंने समय निकाला और इतने बिजी समय में वो निकाल के यहाँ तक आए, हम बहुत धन्यवाद देते हैं उन लोगों का। और आज के ओकेशन पर आपको अच्छी बातें सुनने के लिए मौका मिला आज कलेक्टर साहब से। थैंक यू वेरी मच टू ऑल, थैंक यू वेरी मच for sparing the time. I am very much thankful. I am very much thankful to Honorable Provost sir, Honorable Vice Chancellor sir of the Parul University for sparing his time to address the नेशन बिल्डर, आई से द फार्मर्स। बेसिकली अगर किसी कंट्री को बनाना है तो फार्मर्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच ऑल। ओके, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू, शुक्रिया। नाउ आई थिंक द वेबिनार टीम कैन स्टॉप द स्ट्रीमिंग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
नील सिन्हा नहीं जाना चाहती, दिशा ने तो बंद नहीं कर दिया, वो प्रीति नहीं जाना चाहती, दूसरे लोगों ने भी बंद कर दिया, हम लोग रास्ते ही बंद कर दिए। और मैं बोला मैडम एक बात बताओ, छोटे यार कुछ गई गाँव में आता है अभी नया बताया वो May I log off now? Dr. Sharma? हेलो सर, नमस्कार। May I log off now? हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेयरिंग द टाइम सर। नमस्कार। Sorry, I joined little late, but I just join in time. Rather, I can. हाँ? सॉरी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, अभी कम आई जी सर, सॉरी। I joined in time rather. हाँ? Yes, I play the role which I supposed to that. Now I am just getting log off, right? Oh, yes, sir. Yes. Okay, thank you. Thank you so much, sir.